Hello and very good morning, students. Myself Siddharth Gupta, and I'm sending you the YouTube video for the chapter number 2, QBasic, programming in QBasic. Okay, so you know that there is a network issue. That's why I have just recorded this video. But still, you have any problem, you will free to ask me. Okay, once this chapter will over, I will call you for practicals as well. So please keep concentrating on my videos, and if you find any problem, then you will definitely connect me. Okay, now let's start. First of all, on my previous class, on my on my previous class, we have learned that there are two types of control statements. The first one is conditional statement. Conditional statement. Under this conditional statement, there are two types of we have learned two types of conditions. First one is if then, and the other is if then else. If then else. This is the first conditional statement. And the second conditional statement is, and the second type of control statement is iterative. Iterative. Iterative statements. What are iterative statements? Under these iterative statements, we have come various types of loop. Just like we have to just like for loop and while loop. These are the two basic types of loop that we are referred in these iterative statements. Now we have to understand this. First of all, I just want to say that we have already learned about this conditional statement, that is if then and if then else. But I think at that point of time there was a network issue from my side. Okay, so I'm just repeating this thing again. First of all, I will teach you conditional statement. So in conditional statement, we have I'm just sharing the screen as well. In conditional statement, we have two types of statement: if and if then else. Okay. तो उसके पहले मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ उसको समझने के लिए. सबसे पहले मैं रिमाइंडर लेता हूँ एक लाइन याद करने के लिए. मेरे आपको स्क्रीन दिख रही होगी. वेट, दिख रही है नहीं दिख रही, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार. यस, दिख रही है. ओके, मैं चेक करता हूँ वेदर यू कैन whether number is even or odd. मुझे ये चेक करना है कि मेरा नंबर इवन है कि ऑड है. ये चीज का मुझे प्रोग्राम बनाना है, राइट. इस चीज का प्रोग्राम बनाने के लिए मुझे सबसे पहले करना ये होगा, इस चीज का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे मुझे पहले करना ये होगा बच्चों कि सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इनपुट लेता हूँ, इनपुट. उसमें मैं वेरिएबल डिसाइड कर लेता हूँ. मैं सबसे पहले एक मैसेज देता हूँ, एंटर अ नंबर. और जैसे ही मैं नंबर एंटर कराता हूँ उसको मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ ए. क्या नाम देता हूँ वेरिएबल का? ए. इसके बाद मैं वेरिएबल को चेक करता हूँ, ठीक है. अच्छा, आई हैव टू से वन थिंग दैट हाउ वी कैन चेक द नंबर इज इवन और ऑड. इसको चेक करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं. तरीका क्या है चीजों को इवन ऑड चेक करने का? तो फर्स्ट तरीका ये जो है, इफ आई डिवाइड एनी नंबर, मैं इसको हटा देता हूँ. चेक, अगर मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करता हूँ, सपोज मैं नंबर ले लेता हूँ 12. क्या नंबर लेता हूँ? 12. 12 कैसा नंबर है? इवन है कि ऑड है?
डेफिनेटली आप कहेंगे सर इवन नंबर है। आप उसको कैसे कह सकते हैं ये एक इवन नंबर है? इसको चेक करने का एक तरीका है, अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करूं 2 से और मेरा रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूं 2 से और 2 से डिवाइड करने के बाद मेरा अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो दैट मीन्स वो नंबर क्या है? इवन नंबर है। इफ आई डिवाइड एनी नंबर बाय 2 and if I get the remainder 0, that means that number would be a even number. Similarly, if I get non-zero by dividing 2, that means that number would be an odd number. You can see this. I will take any number. Suppose I will take 12. In that case, I'll just take 12. And once I divide with the 2, what I will got? 2 6 are 12. 2 6 are 12. I'll get 0. So this is 0. And once I get 0, that means the number is even. ये नंबर कैसा है? Even. अगर मुझे रिमाइंडर 0 मिल गया, that means this number will be even. उसी तरीके से मैं दूसरा नंबर लेता हूं, सपोज 15 या 25। मैं नंबर लेता हूं 25। दूसरा नंबर लिया मैंने 25। इसको मैं डिवाइड करता हूं 2 से, तो 2 1 जा 2 माइनस किया, आई विल गेट 0 and carry and copy this 5. 2 2 जा 4 and I will get 1. आपको पता जैसे रिमाइंडर मुझे 1 मिल गया, जैसे रिमाइंडर मुझे 1 मिल गया, आप समझ गए ये नंबर क्या है? ऑड है। कैसा नंबर है? ऑड नंबर। ओके, ऑड। देखिए प्रोग्रामिंग में रिमाइंडर को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, इसको बोलते हैं मॉड ऑपरेटर। इन QBasic वी यूज दिस मॉड ऑपरेटर। दिस इज अ मॉड ऑपरेटर, दिस इज मॉड ऑपरेटर which is used to store data, used to store रिमाइंडर स्टोर करने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, तो चलिए अपने प्रोग्राम पे लौटते हैं हम लोग। ये रहा मेरा प्रोग्राम। देखिए मैंने क्या कर लिया था अपने प्रोग्राम में, अगर आपको याद हो, मैंने एक नंबर एंटर कराया था, एंटर नंबर, और मैंने एक वेरिएबल ले लिया था। मैंने वेरिएबल का नाम क्या दिया था? ए। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABCN कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। मैंने नाम लिया ए। इसके बाद मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, इफ कंडीशन। इफ ए मॉड में कैपिटल में लिखता हूँ, MOD मॉड 2 इक्वल्स 0। अगर इसको 2 से डिवाइड करें, देन प्रिंट नंबर इज इवन, एल्स अगर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मेरा 0 आ जाता है तो नंबर क्या होगा? इवन होगा। एल्स प्रिंट नंबर इज ऑड। ये नंबर क्या है? ऑड नंबर है। और जैसे ही मैं प्रिंट करता हूं, उसके बाद इसको क्या कर देता हूं? एंड इफ करता हूं। क्या करता हूं? एंड इफ। देखिए प्रोग्राम, मैंने सबसे पहले एक नंबर एंटर कराया, इसके बाद जिसका वेरिएबल मैंने लिया ए। जब मैंने इस ए वेरिएबल को 2 से डिवाइड किया और अगर मुझे डिवाइड करने के बाद 0 मिल गया, देन मेरा नंबर क्या प्रिंट होगा? इवन। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी,
तो मेरा कहाँ पे चला जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नंबर इज ऑड। इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूं। हाँ, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, नाउ इट्स कमिंग, आई एम जस्ट चेकिंग इट। नाउ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। ये मैं नंबर लिखता हूँ 13। जैसे मैंने 13 लिखा, 13 इज व्हाट, इवन और ऑड? डेफिनेटली दिस विल बी एन ऑड नंबर। ये कैसा नंबर है? ऑड, क्योंकि मैं 13 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। दैट मीन्स हमारा कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया है, माई एल्स स्टेटमेंट वुड बी रन। मेरा कौन सा स्टेटमेंट रन करा है, एल्स वाला। मेरा स्टेटमेंट कौन सा रन किया है, एल्स वाला। ठीक है, मेरा इफ वाला स्टेटमेंट रन नहीं किया है, मेरा एल्स वाला स्टेटमेंट रन किया है। ठीक है, तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई थी इससे पहले वाले वीडियोस में और पहले वाली जूम क्लासेस में, बट इट माइट बी अ चांस दैट यू विल मिस एवरीथिंग बिकॉज ऑफ पुअर नेटवर्क। सो नाउ कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है, जिस चीज की बात करने जा रहे हैं वो है आइटरेटिव लूप। जिसके बारे में क्या है, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स और लूप्स। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स आइटरेटिव स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स और लूप। बच्चों बात करते हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट एंड लूप क्या होते हैं। बच्चों लूप का मतलब होता है एक किसी काम को रिपीटेड ऑर्डर में करते रहना जब तक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू ना हो जाए। जब तक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक उसी काम को बार बार करते रहना। दिस इज कॉल्ड आइटरेशन और लूप। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं, ये एक सर्कल है, आप यहाँ सपोज ये कोई ए पोजीशन है, ओके दिस इज पोजीशन ए, ये कोई पोजीशन है ए, इसमें लगातार आप घूम रहे हैं, राउंड सर्कल कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एक कंडीशन दे दी मैंने, आप लगातार एक ही जगह घूम रहे हैं, लगातार एक ही ब्लॉक में घूम रहे हैं, एक ही एरिया में घूम रहे हैं। जैसे आपने जब फर्स्ट चक्कर कंप्लीट कर लिया, तो फर्स्ट राउंड रोटेशन कंप्लीट कर लिया, तब आपका हो जाएगा 1। इसके बाद फिर हो जाएगा 2, इसके बाद हो जाएगा 3, इसके बाद हो जाएगा 4। इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं कि आपने कितनी बार रोटेट किया है, पर हमारा ब्लॉक या एरिया वही रहेगा जिसपे हम लोग घूम रहे हैं। ठीक है, तो वही काम जब रिपीटेड ऑर्डर में करते हैं, इफ वी आर डूइंग समथिंग, we are doing the same work in the repeated order, it is called loop. So iterative statement or loop are used to repeat an action again and again for a desired number of times. We have to repeat the same process again and again and n number of times. Okay, so if I'm talk about the definition of the iterative statements or loop, so we can say that it is the repeat action, repeat an action again and again for desired number of time, desired number of times। उसको अब जितनी मन चाहे उतनी बार देख सकते हैं, desired number of times। ओके, क्यू बेसिक में बेसिकली किसी उसी काम को जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। जैसे सर्कल में हम जितनी बार चाहे उतनी बार घूम सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आइटरेशन। ओके, in programming we have two types of loops, iterative loops. First one is for next loop, and the second is while we end. Okay, these are the two basic types of the loop. The first one is for next loop and the second one is while we end. तो ये जो बेसिक लूप्स हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर नेक्स्ट लूप की। बच्चों ये फॉर नेक्स्ट लूप जो है बहुत पॉपुलर लूप है और इसका यूज हम लोग कई बार करते रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले फॉर नेक्स्ट लूप का हम लोग समझते हैं क्या होता है।
पहले इसको आप नोट कर लीजिए, चाहे तो मैं 1 मिनट का टाइम आपको देता हूँ। थैंक यू। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं फॉर नेक्स्ट लूप की। मैं इसको हटाता हूं। डिस्कस अबाउट फॉर नेक्स्ट लूप। व्हाट इज फॉर नेक्स्ट लूप? फॉर नेक्स्ट लूप क्या है बच्चों? अगर मैं फॉर नेक्स्ट लूप की बात करूं तो for next loop is again it is a iterative statement, a looping statement where we have to repeat the same task again and again. But here is some you can say that we have freedom. We have to do the work in a ascending order and descending order. हम इसमें काउंटर लगाते हैं जिसमें हम अपने काम को आगे की तरफ भी कर सकते हैं और पीछे की तरफ भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ये डेफिनेशन है, दिस लूप इज used to execute a statement for a specific number of टाइम्स। किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स तक वही काम लगातार होता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? फॉर नेक्स्ट लूप। वो काम अगेन एंड अगेन हो रहा है, ठीक है? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। किसी अगर मुझे 5 बार करना है तो पहले वो 1 बार होगा, फिर दूसरी बार होगा, फिर तीसरी बार होगा, फिर चौथी बार होगा, फिर 5वीं बार होगा। और जैसे वो 5वीं बार होगा उसके बाद वो 6 टाइम मूव नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कंडीशन कहां तक दी है? 5 टाइम्स तक दी है। तो जितनी कंडीशन मुझे दी जाती है उसी नंबर तक वो चलेगा, उसके आगे वो आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, so it is used a counter variable is in ascending or descending order। इसमें हमारा एक काउंटर वेरिएबल होता है। बेटा काउंटर वेरिएबल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एक वेरिएबल जो लगातार काउंट कर रहा है कि आपने कितनी बार चक्कर लगाया। अगर मैं अपने सर्कल की बात करूं तो काउंटर वेरिएबल जो काउंट कर रहा है, आपने 1 बार घुमा, 2 बार घुमा, 3 बार घुमा, 4 बार घुमा, 5 बार घुमा। ओके, तो काउंटर वेरिएबल जो होता है लगातार काउंट करता रहता है। एक बात। दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं काउंटर वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव ही हो, आप उसको निगेटिव वे में भी ले सकते हो। यानी कि जैसे 10 है, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, इन दैट वे। ओके, that means that it always in ascending as well as descending order. Okay, this counter variable, got it? So if we talk about the syntax, तो मैं syntax की बात करता हूँ। अगर syntax की बात, तो syntax मतलब लिखने का तरीका कैसा दिखता है। ये syntax कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले आता है फॉर, कैपिटल में फॉर लिखते हैं, इसके बाद लगाते हैं काउंटर। क्या लगाते हैं? काउंटर वेरिएबल इक्वल्स टू एक वैल्यू स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से टू एंड तक, और कितने स्टेप आगे बढ़ेगा, स्टेप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है, ठीक है? इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, ठीक है? इंक्रीज और डिक्रीज, गॉट इट? इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। जो एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद इस प्रोग्राम को नेक्स्ट करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? हम लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं कैसे वर्क करता है ये, ठीक है? अगर मैं छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ, मुझे अपने नाम को 5 टाइम्स प्रिंट कराना, आई वांट टू प्रिंट माय नेम 5 टाइम्स, तो इसका मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। देखिएगा,
मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे। ओके, मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले हेडिंग डाल लेता हूँ, रैम प्रिंट माई नेम, हेडिंग के लिए डालता हूँ प्रिंट माई नेम 5 टाइम्स यूजिंग फॉर नेक्स्ट लूप। फॉर नेक्स्ट लूप का यूज करते हुए आपको 5 बार अपना नाम लिखना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, फॉर लिखते हैं, फॉर लूप की स्टार्ट करते हैं जैसा मैंने आपसे बताया था। फॉर आई, आई एक काउंटर हो गया, इक्वल्स टू 1 2 5, 2 मेरा कैपिटल में होगा 2 5, और यहां लिखेंगे स्टेप st स्टेप 1, हर बार एक स्टेप आगे बढ़ेगा। इसके बाद मैं प्रिंट करता हूं, प्रिंट हेलो, दिस इज सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ये सिद्धार्थ है। ओके, इसके बाद मैं जैसे ही इसको एंड कर दूंगा, मैं करूंगा हर बार जैसे ही वो इंक्रीमेंट होगा एक ऑर्डर में, इसके बाद उसके सिंटेक्स में आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा, वो काउंटर वेरिएबल यानी नेक्स्ट आई। ओके, मैंने आई स्मॉल में लिया हुआ है तो मैं स्मॉल में लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है तो मैं यहाँ पे भी, ये देखिए लूप आई स्मॉल में दिया गया है, इसको मैं कैपिटल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। राइट, गॉट इट। और जैसे ये यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया, इसके बाद मुझे प्रोग्राम एंड करना पड़ेगा। राइट, मैंने प्रोग्राम एंड कर दिया। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने फॉर लूप लगाया जिसमें मैंने काउंटर वेरिएबल ले लिया। मेरे केस में काउंटर वेरिएबल का नाम क्या है, आई, जिसकी मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दी 1, और ये कहां तक जाएगी, 5 तक, यानी मेरा नाम 5 बार प्रिंट होगा। और हर बार वैल्यू बढ़ने का तरीका क्या है, 1, एक बार में एक वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, उसके बाद हेलो दिस इज सिद्धार्थ, मैंने प्रिंट में स्टेटमेंट दिया हेलो दिस इज सिद्धार्थ। प्रिंट में आप कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, इट विल बी एग्जीक्यूटेड। ये मैंने आपको क्लास 7 में बताई थी ये बात। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा आई। ठीक है, हर बार आई की वैल्यू 1 2 3 4 तरीके से बढ़ती रहेगी। ठीक है, कब तक, जब तक 5 नहीं हो जाता। मैं प्रोग्राम रन करता हूं। बच्चों आप लोग देख सकते हैं प्रोग्राम रन हो चुका है। ये नाम मैंने 10 टाइम प्रिंट हो गया है, मेरा ये जो नेम है 10 टाइम प्रिंट हो गया है। ये यू कैन सी दिस। ओके, दिस नेम इज प्रिंटेड 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स नाम प्रिंट हो गया है। ओके, ये देखिए मैंने 5 टाइम रन कराया था, 1 to 5 ये प्रोग्राम रन हो चुका है। आप चाहे तो इस प्रोग्राम को नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो। आप देखिए मैंने जैसे इसको 5 टाइम्स लिखा, ये अपने आप 5 टाइम प्रिंट हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से फॉर लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग फॉर लूप के बारे में और भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना समझ लीजिए, और इस पे कोई क्वेरी तो मुझसे पूछिए, और अब जो भी डाउट्स है आप मुझसे अभी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, और मैं सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू क्लास।